Hello dear students of class 9. Once again I welcome you all in this online session of classes. As we all know that we are doing our chapter number 4, which is linear equations in two variables. So till the last video lecture we have concluded exercise 4.3. So now today we are going to start exercise 4.4. In this 4.4 exercise, friends, there are only two questions we shall be solving. Both of those two questions today. So exercise 4.4. First of all, question number 1. So question number 1 is, give the geometric representation of y is equals to 3 as an equation and ये एक इक्वेशन आपको गिवन है y is equals to 3 और आपने इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है in one variable and secondly as two variables. You have to represent this first of all in one variable and after that in two variables. You have to represent this equation geometrically. So students, see, geometrically representation will be doing in number line and in Cartesian plane. So first of all we have to show in one variable. One variable means there should be only one variable. That means there should be no other variable, only single variable should be there. So that we will represent using the number line this equation as y is equals to 3. So एक नंबर लाइन आप बना लीजिए. सबसे फर्स्ट में इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल. वन वेरिएबल में आप क्या कीजिए, नंबर, क्योंकि सिंगल वेरिएबल होना चाहिए. So this is minus infinity, this is plus infinity, this is 0. इसके राइट हैंड साइड में कैसे टर्म्स होते हैं, पॉजिटिव, और लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव. So this is -1, this is -2, this is -3. So इक्वल डिविजन्स आप लोग लीजिएगा. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4. More points you can also take as your convenience. तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने नंबर लाइन शो की है. अब आप लोग को क्या पॉइंट इक्वेशन शो करनी है, y is equals to 3. y is equals to 3. y की वैल्यू क्या गिवन है, आपके पास 3 गिवन है. तो देखिए ये मत सोचिएगा कि केवल एक्सिस को शो करेगा. अगर तो सिर्फ कार्टेशियन प्लेन आप शो कर रहे हैं, देन हॉरिजॉन्टल लाइन इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज रिप्रेजेंटेड एज वाई एक्सिस. लेकिन अगर हमने सिंगल वेरिएबल में लाइन शो करी है तो पर्टिकुलरली एक्स एक्सिस को नहीं शो करेगा, वो एक्स को भी शो कर सकता है, वाई को भी शो कर सकता है. तो यहाँ पे y is equals to 3. तो y की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 3 गिवन है. तो 3 पॉइंट कैसे करके आप क्या कर दीजिए, डार्क कर दीजिए. सो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, y is equals to 3. ऑन अ सिंगल वेरिएबल एक नंबर लाइन में हम लोगों ने क्या पॉइंट शो किया है, y is equals to 3. तो उस पॉइंट को डार्क करके उसके ऊपर मार्क कर दीजिए y is equals to 3. Now second part is we have to show this in two variables. Two variable means we have to plot x-axis also and y-axis also, and that plane in which x-axis and y-axis comes is known as Cartesian plane. ये क्या है, से Cartesian plane है. This is x, this is x dash, this is origin, this is y, and this is y dash. 1, 2, 3. This is 1, 2, 3. -1, -2, -3. You can show this Cartesian plane on the graph also if graph is available. But if graph is not available, you can show it in notebook also. -1, -2, -3. So in this way we have shown the Cartesian plane. After this we will represent the equation y is equals to 3. y is equals to 3. तो सुन देखिए, मैंने आपको पिछले लास्ट लेक्चर में बताया था कि x is equals to a और y is equals to a की लाइन कैसे बनती है. x is equals to a की लाइन कैसे ड्रॉ होती है, पैरेलल टू y axis. बट y is equals to a is a line which is parallel to x axis. So y is equals to a की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 3 गिवन है. So y axis this वर्टिकल एक्सिस है. So y is equals to 3. This is the point y is equals to 3. So एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिए पैरेलल टू x axis.
So student, this is a line parallel to y-axis at a distance of 3 units from the origin. और जैसे कितने डिस्टेंस पर 3 यूनिट्स पर, क्योंकि पॉइंट आपके पास 3 है, तो इस लाइन की इक्वेशन आपके पास क्या हो जाएगी, y is equals to 3. लाइन के ऊपर एक इक्वेशन डिनोट कर दीजिए, y is equals to 3. नंबर लाइन पे आप लोगों ने सिंगल वेरिएबल में शो किया है और 2 वेरिएबल्स में आप लोगों ने कार्टेशियन प्लेन में शो करना है. पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने बताया था कि x is equals to a is a line parallel to y axis and y is equals to a is a line parallel to x axis. So this is the solution of question number 1 in one variable as well as in 2 variables. After that, we'll be doing second question. Now, since second question is also similar to this first one only question is different. Give the geometric representations of 2x plus 9 is equals to 0. 2x plus 9 is equals to 0 as an equation in one variable and two variable. दोनों वेरिएबल्स में आपको रिप्रेजेंट करना है. तो सिर्फ देखिए, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए. 2x is equals to 9 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दीजिए, minus 9. After that, this sign is meaning it implies that, so this equation implies that x is equals to minus 9 by 2. 9 by 2 आपको पता कितना होता है, 4.5. यहां लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन नंबर लाइन में आप लोग ध्यान रखिएगा. 9 by 2 मीन्स 9 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज 4.5. अगेन दिस इज माइनस इंफिनिटी, दिस इज प्लस इंफिनिटी. लेट अस से दिस इज 0, 1, 2, 3, 4. Now minus 1, minus 2, minus equal division, so minus 3, minus 4 and minus 5. This is a number line in single variable. So we have to plot an equation that is x is equals to minus 9 by 2. सिंगल वेरिएबल में तो एक नंबर लाइन हम लोग सिंगल वेरिएबल में नंबर लाइन शो कीजिए, 2 वेरिएबल्स में कार्टेशियन प्लेन. सो x is equals to minus 9 by 2. Minus 9 by 2 means minus 4.5. 4.5 means it is a point just in between 4 and 5. So इसके जस्ट बीच में स्टूडेंट एक पॉइंट ऐसे करिए, शो कर दीजिए. ये पॉइंट क्या हो जाएगा, minus 9 by 2. आप नीचे पेंसिल से शो कर सकते हैं. एंड सो प्लीज, आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट, please draw this number line as well as Cartesian plane with pencil. Do not draw with pen and use scale also. So this point shows x is equals to minus 9 by 2. So this point you can dark it. X is equals to minus 9 by 2. ये पॉइंट आपका क्या शो कर रहा है, x is equals to minus 9 by 2. So this is in one variable. After that, we'll plot this in two variables. So this is x, this is y, x dash and y dash. So 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. So minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 and minus 5, minus 1, minus 2, minus 3. Like that you can make the Cartesian plane with equal divisions. You can use scale strengths for equal divisions. Now x is equals to minus 9 by 2. x की वैल्यू कितनी है, minus 9 by 2. So सुन देखिए, x एक्सिस ये है, horizontal axis. Now minus 9 by 2 means minus 4.5. So minus 4.5, ये पॉइंट हो जाएगा 4 और 5 के जस्ट बीच में. अगर आप ग्राफ पेपर यूज कर रहे हैं तो वहां पे इक्वली आपको साफ दिखाई देगा, 4 और 5 के बीच में डार्क एक लाइन दिखाई देगी, दैट इज 4.5. सो नाउ x इज इक्वल्स टू a. पॉजिटिव हो या नेगेटिव, नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है. पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में. x इज इक्वल्स टू माइनस a कैसी लाइन रहेगी, पैरेलल टू y एक्सिस. x इज इक्वल्स टू a इज पैरेलल टू y एक्सिस. सो y के पैरेलल y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना लीजिए. So this line may not be
visible to you as straight line, but you have to draw a straight line using scale. And here you can write down upon this line, what is the equation of this line? 2x plus 9 is equals to 0. You can show x is equals to minus 9 by 2 also. यहाँ पे स्टूडेंट्स आप x is equals to minus 9 by 2 भी शो कर सकते हैं और 2x plus 9 equals to 0 भी शो कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे शो किया है 2x plus 9 is equals to 0. So this is the solution of 2x plus 9 is equals to 0 in one variable and this in two variables. So students, with this, our this chapter number 4, linear equation in two variables is over. So students, I am not going to end our session right here now. Today we are also going to start our chapter number 5, and chapter number 5 is Introduction to Euclid's Geometry. That is Introduction to Euclid's Geometry. Euclid's Geometry. So students, first of all, you have to understand what is the meaning of the name of this chapter, Introduction to Euclid's Geometry. So before coming to Euclid's Geometry, I would like to give importance to the word geometry. Geometry students meaning geo means earth and metry means measurement. Material जिसको हम बोलते हैं, it's a Greek in the Greek language. ये जो word है Greek language का है. Geo means earth and metry means measurement. So earth को measurement करना. अब देखिए सर, जो यूक्लिड्स ज्योमेट्री ये जो ब्रांच है मैथमेटिक्स की, दिस वाज जनरली यूज्ड, दिस ज्योमेट्री वाज जनरली स्टार्टेड बाय इजिप्शियंस. स्टार्टिंग में सर इजिप्शियंस लोग जब होते थे तब लैंड की मेजरमेंट करने के लिए, लैंड की लेंथ मेजर करने के लिए या फिर ब्रेड्थ मेजर, कोई भी पोर्शन ऑफ एरिया लेंथ मेजर करने के लिए, ब्रेड्थ मेजर करने के लिए जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स यूज करते थे, जो एक फंडामेंटल यूज करते थे, उसको उन्होंने क्या नेम दिया? ज्योमेट्री. जियो मीन्स अर्थ and metry means measurement. जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, you have to just understand these things. Geometry. Now Euclid's geometry, Euclid is a professor, or we can say scientist, or is a mathematician who gave the very important postulates or axioms regarding this geometry. कुछ स्टूडेंट्स अब इस चैप्टर में जब हम डिटेल्स में पढ़ने हैं वो दो चीजें पढ़ेंगे, वन इज एक्सियम्स एंड वन इज पोस्टुलेट्स. सो Euclid's geometry मैंने आपको बताया, Euclid is a professor और scientist और a mathematician who gave very important axioms and postulates. Geometry का क्या मतलब है? All the measurement related to earth, related to earth. So now, first of all students, what basic thing is introduced or explained in this chapter? पहले axioms में जाने से पहले students बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताई गई है और वो है solids, surface, linear, line and point. सॉलिड, सरफेस, लाइन्स एंड पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे क्लियर किया गया है. कोई भी स्टूडेंट सॉलिड है, एनीथिंग सॉलिड. फॉर एग्जांपल आई से दिस बुक इज अ सॉलिड, दिस बुक इज अ सॉलिड मींस व्हिच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. सॉलिड की डेफिनेशन क्या होती है? व्हिच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. अर्थ का आप सरफेस देखिए, दैट इज आल्सो सॉलिड. सो एनीथिंग सॉलिड, ठीक है, व्हिच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. नाउ आफ्टर दैट सरफेस. अब स्टूडेंट सॉलिड का अगर मैं कहूं, ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, तो ये आपको सामने क्या दिखाई दे रहा है? सरफेस. सॉलिड का आपको क्या दिखाई दे रहा है? सामने सरफेस दिखाई दे रहा है. इट्स अ वेरी क्लीन सरफेस. आफ्टर दैट व्हाट इज अ लाइन? सो देखिए लाइन को भी बड़ी क्लियरली पेज नंबर 80 आर्टिकल 5.2 यूक्लिड्स डेफिनेशंस, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स वाले टॉपिक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. अब देखिए फ्रेंड्स, इस सरफेस को, अगर आप इस सरफेस को देखें, सरफेस की जो एंड्स हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको एंड्स क्या दिखाई दे रहा है? एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है. ये क्या दिखाई दे रही है? एक स्ट्रेट लाइन. This is a straight line and downside also it is a straight line. So एक सरफेस के जो एंड में आपको क्या दिखाई देती है? या तो स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी या फिर कुछ कर्व्स दिखाई देंगे. जैसे अर्थ सरफेस पे हम लोग क्या कर्व शो करते हैं? अर्थ सरफेस को कैसे शो करते हैं? स्फेरिकल, बिकॉज द शेप ऑफ द अर्थ इज स्फेरिकल. लेकिन हम 2D में कैसे शो करते हैं? सर्कुलर. सो सरफेस के एंड में हमें क्या दिखाई देती है? स्ट्रेट लाइंस. नाउ एंड ऑफ द स्ट्रेट लाइंस, अभी लास्ट में बचता है पॉइंट. पॉइंट क्या है? इस स्ट्रेट लाइन की जो एंड है, अगर आप ध्यान से देखें फ्रेंड्स, ये एक स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन का जो एंड, एक जो हम कहें पोर्शन, वो क्या है? पॉइंट.
इस स्ट्रेट लाइन का यहाँ पे एंड पोर्शन क्या है, पॉइंट. सो दिस इज द पॉइंट. नाउ just downside you can see 7 main important points are given. You have to write down one heading. एक हेडिंग आप लोग लिखेंगे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, सॉलिड्स, सरफेसेस, सॉलिड्स कॉमा सरफेसेस कॉमा लाइंस एंड पॉइंट्स. कैसे आप लोग लिखेंगे देखिए. So this is not the question of an exercise. It is just important article. आप लोगों को पता होना चाहिए कि सारी चीजें क्या हैं. So इसके नीचे अब आप लोगों ने क्या लिखना है, डेफिनेशंस नहीं लिखनी है. पेज नंबर 80 पे 7 पॉइंट्स आपको गिवन है. Those 7 points are very important. You have to write down all those 7 points in your notebook. First point is regarding point. A point is that which has no part. कोई भी पार्ट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल पार्ट कहने का मतलब है अ पॉइंट इज अ पॉइंट विच इज हैविंग नो लेंथ, नो ब्रेड्थ एंड नो हाइट. एक पॉइंट वो चीज है, वो एक हम कहते हैं पोर्शन है जिसका कोई पार्ट ही नहीं है. ऑलराइट, मींस इट जस्ट पर्टिकुलर एंड, एक एंड विच इज हैविंग नो लेंथ, नो ब्रेड्थ एंड नो हाइट. सो अ पॉइंट इज दैट विच इज हैविंग नो पार्ट. सेकेंड इज अ लाइन इज अ ब्रेडथलेस लेंथ. अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल इफ आई ड्रॉ एनी स्ट्रेट लाइन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. मैंने तो टेढ़ी बनाई है, स्ट्रेट लाइन है. एक स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट. अ स्ट्रेट लाइन, अ लाइन इज अ ब्रेडथलेस लेंथ. वो लेंथ तो है लेकिन कैसे ब्रेडथलेस, मींस इट इज हैविंग नो ब्रेड. सो देखिए बिकॉज ऑफ द विड्थ ऑफ द मार्कर्स एंड आप लोग को थोड़ी सी चौड़ी लाइन दिखाई दे रही है. तो जो आप लोग पेंसिल से, शार्प पेन से ड्रॉ करते हैं, सो इट्स ब्रेड्थ इज वेरी वेरी माइनर, मींस नेग्लिजिबल. सो अ स्ट्रेट लाइन इज अ ब्रेडथलेस लेंथ, मींस उसकी कोई भी ब्रेड्थ नहीं होती एक लाइन की. थर्ड, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स. अब देखिए फ्रेंड्स, इस एंड का जो लास्ट पर्टिकुलर पोर्शन है, लास्ट पर्टिकुलर पोर्शन दोनों तरफ, वो जो पर्टिकुलर पोर्शन है वो क्या है, पॉइंट. एंड पॉइंट क्या है, पॉइंट. सो नाउ number 4, a straight line is a line which lies evenly with the points on itself. सर देखिए इस लाइन का मतलब क्या है. अगर आप काफी सारे पॉइंट्स शो करें, सर देखिए मैंने ये लाइन नहीं ड्रॉ की है, अगर आप इसको जूम करके अच्छे देखें, मैंने पॉइंट्स को प्लॉट किया है लगातार, विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी स्पेस, विदाउट एनी गैप इन बिटवीन. तो जो अभी आपको सरफेस मिलेगा, एक जो लाइन, जो एक वी कैन से फिगर जो आपको मिलेगी यहाँ पे, वो क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन. सो वो यहाँ पे बताया गया है, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ. पॉइंट्स के इटसेल्फ, अगर आप उस पॉइंट्स को सारे को जॉइन करें, या फिर जॉइन करने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक स्ट्रेट लाइन. अगर आप लगातार पॉइंट्स बनाते रहे तो आपको क्या दिखाई देगी, एक स्ट्रेट लाइन. नेक्स्ट पॉइंट 5, अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली. एक सरफेस क्या होती है, जिसकी खाली लेंथ और ब्रेड्थ हो, हाइट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ क्या हो, लेंथ एंड ब्रेड्थ. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, इफ आई शो यू दिस बुक, सो देखिए मैंने आपको ऐसे करके बुक नहीं शो करी है, ध्यान से देखिए. अभी आपको सिर्फ सामने से आपको क्या दिखाई दे रहा है, ओनली अ सरफेस. हाइट क्या है, वो यू हैव टू टेक नथिंग फ्रॉम दैट, यू हैव टू जस्ट सी ओनली द सरफेस, फ्रंट सरफेस. आपको क्या दिखाई देगा, एक सरफेस जिसकी ये एंड क्या हो जाए, इस साइड क्या हो जाएगी, लेंथ, और ये हो जाएगी ब्रेड. दिस इज ऑल्सो लेंथ एंड दिस इज ऑल्सो ब्रेड. सो दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेड. हाइट तो ये है, लेकिन आपको हाइट से अभी कोई लेना देना नहीं है. सरफेस में आपको क्या दिखाई देना चाहिए, सिर्फ लेंथ और ब्रेड. और सो अ सरफेस इज अ पोर्शन और इज द रीजन हैविंग ओनली लेंथ एंड ब्रेड. आफ्टर दैट द एजेस ऑफ अ सरफेसिस आर लाइंस. अब जो सरफेसिस के किनारे हैं, जैसे देखिए इस सरफेस का ये जो किनारे हैं, कॉर्नर्स, एजिस, एजिस मतलब होता है कॉर्नर्स, ठीक है ना. एजिस है वो क्या है, लाइंस. यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रही है, स्ट्रेट लाइंस. कॉर्नर्स पे आपको क्या दिखाई दे रही है, स्ट्रेट लाइंस. एंड सेवंथ पॉइंट इज द अप्लेन सरफेस. अप्लेन सरफेस क्या होता है, अप्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ. प्लेन सरफेस क्या होना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो सरफेस शो करेगा. प्लेन मींस
तो देखिए अगर आप इसको टच करें शुड बी वेरी स्मूथ, ये नहीं कि उबड़ खाबड़ सरफेस हो, बिल्कुल स्मूथ सरफेस। अगर वो स्ट्रेट लाइन अगर फॉर्म हो रही हो तो उसके ऊपर जो सरफेस दिखाई देता है वो सरफेस कैसा होना चाहिए, प्लेन। वो क्या होता है, प्लेन सरफेस। सो सरफेस क्या है, लाइन क्या है, पॉइंट क्या है, एंड सरफेस, सॉलिड्स, लाइंस एंड सरफेस पॉइंट्स क्या है, ये आपको इस आर्टिकल में बताया गया है। सो इस हेडिंग को डाल के आप लोगों ने सारे के सारे 7 पॉइंट्स नोट करने हैं। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी मूविंग टू यूक्लिड्स एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। यूक्लिड्स करके क्यों कहा गया, बिकॉज द वन प्रोफेसर, द प्रोफेसर और मैथमेटिशियन हु हैज गिवन दोस एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स, the name of that professor was Euclid. So because of that these axioms and postulates are known as Euclid's axioms and postulates. And those axioms and postulates we will study. And what do you mean by axioms, what do you mean by postulates, we will be studying in the next video lecture. So till then, thank you, take care and have a nice day.